அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்தி கைஷ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आज का कार्यक्रम है हमेशा की तरह शुद्ध हिंदी लिखना और बोलना. कभी कभी शब्दों का प्रयोग जब हम करते हैं तो वो प्रयोग शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी होता है, लेकिन शुद्ध होना चाहिए. अलावा इसके जिसका उपयोग व्याकरणिक तौर पर करना चाहिए उसी का प्रयोग करना चाहिए. நாம் பேசுகின்ற பொழுதும் எழுதுகின்ற பொழுதும் தூய்மையான மொழியிலே எழுத வேண்டும், தூய்மையாகவே படிக்க வேண்டும், தூய்மையாகவே பேச வேண்டும். சில சமயங்களில் சொற்களுடைய அமைப்பு ஏறக்குறைய ஒரே கருத்தை கூட இருந்தாலும் கூட சில முறை தவறி என்றால் அந்த வழக்கமாக சொல்கின்ற அந்த வார்த்தையை விட வேறு வார்த்தை நாம் போடுகிறோம். அது சில சமயங்களில் தூய்மை அற்றதாக மாறிவிடுகிறது. தமிழில் உதாரணமாக வினா என்று கேட்டால் அதற்கு விடை என்று சொல்ல வேண்டும். அதுபோல் கேள்வி என்று கேட்டால் அதற்கு பதில் என்று சொல்ல வேண்டும். கேள்வி என்று கேட்டால் அதற்கு விடை என்றோ, வினா என்று கேட்டால் அதுக்கு பதில் என்றோ சொல்லக்கூடாது. இரண்டும் ஒன்று தான் இருந்தால் கூட சொல்லுகின்ற முறையிலே வித்தியாசம் இருக்கிறது. அப்படி அந்த முறையிலே வித்தியாசம் இருந்தால் அதை நாம் சற்று மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற கருத்தை சொல்வதுதான் இன்றைய பதிவு. சரி, முதலாவதாக பார்ப்போம். पहला, राम शुद्ध भाषा में लिखने का व्यायाम कर रहा है. राम शुद्ध भाषा में लिखने का व्यायाम कर रहा है. ராமன் தூய மொழியிலே எழுதுவதற்கான பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார். இது கேட்க சரியாகத்தான் இருக்கிறது. ஆனால் வியாயாம் என்ற வார்த்தை நாம் எக்ஸசைஸு, அதாவது உடற்பயிற்சிக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்த வேண்டும். ஆகவே சரியான प्रयोग என்ன தெரியுமா? सही प्रयोग ये है, राम शुद्ध भाषा में लिखने का अभ्यास कर रहा है. राम शुद्ध भाषा में लिखने का अभ्यास कर रहा है. यही शुद्ध हिंदी है, इसलिए यहाँ पर व्यायाम लिखना गलत है, अभ्यास कर रहा है. इसलिए छात्रों इसको ध्यान में रखो. मैंने यहाँ पर आंसर नहीं दिया है बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में, शाम पर आप कॉपी ले लीजिए और नोट कर लीजिए. और दूसरा, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है. வாழ்க்கைக்கும் இலக்கியத்துக்கும் ஆழ்ந்த தொடர்பு இருக்கிறது. जीवन और साहित्य का घोर संबंध है. घोर संबंध, घोर का मतलब है गहरा, घना. लेकिन यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? जीवन में साहित्य का घोर संबंध है, वो गलत है, घनिष्ठ संबंध है. जीवन में साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, वो लिखना चाहिए. वही सही है, घनिष्ठ संबंध है. நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது. வாழ்க்கைக்கும் இலக்கியத்துக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது. घनिष्ठ संबंध है. और सामाजिक कुरीतियों का मूल कारण अज्ञानता है.
சமுதாய தீய பழக்கவழக்கங்களுக்கு அடிப்படை காரணம் அறியாமைதான். இது பார்ப்பதற்கு சரியாக இருக்கிறது, बट हिंदी में वो शुद्ध नहीं है। सांसारिक कुरीतियों का मूल कारण अज्ञान है, अज्ञानता है, अज्ञान है। और निरपराधी को दंड देना अनुचित है। निरपराधी को दंड देना अनुचित है। குற்றமற்றவனுக்கு தண்டனை கொடுப்பது தவறானது. இது படிக்க சரியாக இருக்கிறது, ஆனால் வாக்கிய அமைப்பின்படி தவறானது. निरपराध को दंड देना अनुचित है। निरपराध को, निरपराधी नहीं, निरपराध को दंड देना अनुचित है। प्रधानाध्यापक को छात्रों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया। தலைமை ஆசிரியருக்கு மாணவர்கள் வாழ்த்து மலர்கள் தந்தார்கள். பிரதான் கியா என்றால் வழங்கினார்கள் என்று பொருள். ஆனால் இங்கே பிரதான் கியா வரக்கூடாது. इसके लिए क्या करना चाहिए? अभिनंदन पत्र अर्पित किया। अभिनंदन पत्र अर्पित किया, अर्पणिताர்கள்। प्रधान अध्यापक को छात्रों ने अभिनंदन पत्र अर्पित किया। और ये एक ऐतिहासिक घटना है। ये एक ऐतिहासिक घटना है। இது ஒரு வரலாற்று நிகழ்ச்சி। ये एक ऐतिहासिक घटना है। ये एक ऐतिहासिक घटना है। ये सही है, ये एक ऐतिहासिक घटना है। और वे गाने की कसरत कर रहे हैं। वे गाने की कसरत कर रहे हैं। அவர் பாடுவதற்கு பயிற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். தமிழ் சரியாக இருக்கும், ஆனால் कसरत என்பது உடற்பயிற்சி। वे गाने का अभ्यास कर रहे हैं। वे गाने का अभ्यास कर रहे हैं, अदा சரியானது। वे गाने का अभ्यास कर रहे हैं। मैं जानबूझकर गलती कर बैठा। मैं जानबूझकर गलती कर बैठा। நான் வேண்டுமென்றே தவறு செய்தேன் என்றால் யாருமே வேண்டுமென்றே தவறு செய்ய மாட்டார்கள், அது சரி, கருத்து தவறு। मैं अनजान में गलती कर बैठा। मैं अनजान में அறியாமல் தவறு செய்துவிட்டேன்। सूरदास मेरी सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। सूरदास कहते हैं, सूरदास सभी अविद्या दूर करो नंदलाला। मैं अनजाने में ही गलती करता हूँ, इसलिए ये कृष्ण उसको माफ़ करो। यहाँ पर मैं जानबूझकर गलती कर बैठा नहीं, मैं अनजान में, अनजान में गलती कर बैठा। नदी अपने साथ புஜாவு ரேட் லாத்தி है। ஆறு தன்னோடு கரிசல் மண்ணை, விளைச்சலுக்கு ஏற்ற மணலை கொண்டு வருகிறது। रेत என்றால் மணல், மணல் வேறு மண் வேறு। यहाँ पर क्या करना चाहिए? नदी अपने साथ पुजाऊ मिट्टी लाती है। नदी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती है। கரிசல் மண்ணை, விளைகின்ற மண்ணை கொண்டு வருகிறது, விளைகின்ற மணலை அல்ல, மணலிலே விளையாது। उसके गले में मोती की कड़ियाँ हैं। उसके गले में मोती की कड़ियाँ हैं। அவருடைய கழுத்திலே முத்து சங்கிலி இருக்கிறது। கடியா சங்கிலி, அது சரியாக இருக்கும், ஆனால் போடக்கூடாது। उसके गले में मोती की लड़ियाँ हैं। कड़िया अलग है, लड़ियाँ अलग है। कड़ी का मतलब इस प्रकार का वो क्या है? चेन है। ये भी चेन है अंग्रेजी में, लेकिन दोनों में फ़र्क है, व्यत्यास இருக்கிறது। मोती की लड़ियाँ हैं, मोती की कड़ियाँ नहीं। कड़िया என்றால் இரும்பால் செய்யப்பட்ட வளையத்துக்கு கடி என்று பெயர்।
उसके गले में मोती की कड़ियाँ है, वो गलत है। उसके गले में मोती की लड़ियाँ है। चलो, डाकू के पैरों में हथकड़ियाँ है। கொள்ளைக்காரனுடைய திருடனுடைய கால்களிலே விலங்கு இருக்கிறது. ஹத்கடியா என்றால் கை விலங்கு. எப்படி காலம் போடுறது? ஆக डाकू के पैरों में बेड़ियाँ हैं. बेड़िया என்றால் கால் விலங்கு. डाकू के पैरों में बेड़ियाँ हैं, हथकड़ियाँ नहीं है. वो गलत है. देखने में समान लगता है. அவனுடைய கொள்ளைக்காரனுடைய கைகளிலே விலங்கு, கால்களிலே விலங்கு இருக்கிறது. கொள்ளைக்காரனுடைய கால்களிலே விலங்கு சரியான வார்த்தை தான், ஆனால் அதை பயன்படுத்தக்கூடாது. बेड़ियाँ और बेफिजूल बातें मत करो. बेफिजूल बातें मत करो. बे என்றால் இது வந்து உபசர்கு என்று சொல்வார்கள் ஹிந்தியிலே. ஹிந்தி இலக்கியத்திலே இதை வந்து உபசர்கு, ஆங்கிலத்திலே ப்ரிஃபிக்ஸ் என்பார்கள். முன்னால் சேருவது, அது சேர்ந்தால் அது ப்ரிஃபிக்ஸ் என்பார்கள். இது வந்து உருது வேர்டு. உருதுவிலே முன்னாலே உபசர்கு, அதாவது ப்ரிஃபிக்ஸ் என்பது பே என்ற வார்த்தை வரும். பே என்றால் ஆப்போசிட்டை குறிக்கும். காம், பேகாம், வேலை இல்லாத. வக்கூஃப், புத்திசாலியான. பே வக்கூஃப், புத்திசாலித்தனம் அற்ற. குணா, குற்றம். பே குணா, குற்றமற்றவன். இந்த பே வரும். பே வந்தால் அது ஆப்போசிட், अதாவது नहीं का मतलब है. इसलिए यहाँ पर बेफिजूल बात मत करो. फिजूल वही वेस्ट, தேவையற்ற வீண் பேச்சுக்களை பேசாதே. ஃபிதூல் கா மத்லப் ही தேவையற்ற வார்த்தை, அது முதல்ல பே தேவையில்லை. ஆகவே பேசும்பொழுது அப்படினாக பேசக்கூடாது. बेमिसाल, बेकाम, बेनाम. तब बिना मैच तमिल है. बेनाम शब्द ही तमिल में बेनामी बन गया. बे फिजूल बात मत करो. फिजूल बात मत करो. தேவையற்ற வார்த்தைகளை பேசாதே. बेकार बातें मत करो. बेकार को फिजूल कहते हैं. बे की जरूरत नहीं है. लेखन में शुद्धताई बरतो. लेखन में शुद्धताई बरतो. लेखन में लिखने में शुद्धता बरतो. शुद्धताई की जरूरत नहीं है, शुद्धता बरतो. लेखन में शुद्धता बरतो. लेखन में शुद्धता बरतो. मैं मिठाई खरीदने के हेतु बाजार गई थी. मैं मिठाई खरीदने के हेतु बाजार गई थी. मैं मिठाई खरीदने के हेतु. हेतु का मतलब है कारण. के कारण कहते हैं ना, उसी प्रकार हेतु. मैं मिठाई खरीदने के हेतु बाजार गई थी. यहाँ पर हेतु के सामने के नहीं आना चाहिए. कारण के सामने के आ सकते हैं, लेकिन हेतु के सामने के नहीं लगाना चाहिए. मैं मिठाई खरीदने हेतु बाजार गई थी. मैं मिठाई खरीदने हेतु बाजार गई थी. நான் இனிப்பு வாங்குவதற்காக கடைவீதிக்கு போயிருந்தேன். मैं मिठाई खरीदने हेतु, खरीदने की हेतु नहीं, खरीदने हेतु बाजार गई थी. और एक बार, राम शुद्ध भाषा में लिखने का व्यायाम कर रहा है. राम शुद्ध भाषा में लिखने का अभ्यास कर रहा है. जीवन और साहित्य का घोर संबंध है. जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है. सामाजिक कुरीतियों का मूल कारण अज्ञानता है. सामाजिक कुरीतियों का मूल कारण अज्ञान है. निरपराधी को दंड देना अनुचित है. निरपराध को दंड देना अनुचित है. प्रधानाध्यापक को छात्रों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया. प्रधानाध्यापक को छात्रों ने अभिनंदन पत्र अर्पित किया.
ये एक ऐतिहासिक घटना है। ये एक ऐतिहासिक घटना है। ये एक ऐतिहासिक घटना है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। ये नहीं आना चाहिए। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। मैं जानबूझकर गलती कर बैठा। मैं जानबूझकर गलती कर बैठा। मैं अनजान में गलती कर बैठा। मैं अनजान में गलती कर बैठा। कविता पढ़कर उसे आनंद का आभास हुआ। आभास हुआ। कविता पढ़कर उसे आनंद का अनुभव हुआ। आभास नहीं, अनुभव हुआ। उसके गले में नदी अपने साथ उपजाऊ रेत लाती है। नदी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती है। उसके गले में मोती की कड़ियाँ हैं। उसके गले में मोती की लड़ियाँ हैं। डाकू के पैरों में हथकड़ियाँ हैं। डाकू के पैरों में बेड़ियाँ हैं। और वे फिजूल बात मत करो। फिजूल बात मत करो। फिजूल बात मत करो। लेखन में शुद्धताई बरतो। लेखन में लिखने में शुद्धता बरतो। बरतो मतलब पालन करो। मैं मिठाई खरीदने के हेतु बाजार गई थी। मैं मिठाई खरीदने बाजार गई थी। मैं मिठाई खरीदने बाजार गई थी। यह इस प्रकार शब्दों के व्यवहार में, प्रयोग में अशुद्धियाँ होती हैं। ये टोटली गलत नहीं है, अशुद्धि है बस। इसका सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार ठीक करके बोलने का, लिखने का अभ्यास कर लेना चाहिए। खास करके मेरा कहना यह है, अभ्यास कीजिए। जो भी हो, चाहे गाना हो, चाहे भजन हो, चाहे व्यायाम हो, चाहे कसरत हो, अभ्यास कर लीजिए। लिखने का अभ्यास कीजिए। पढ़ने से अलावा पढ़ना ठीक है, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा लिखने का अभ्यास डालना चाहिए। क्योंकि लिखने से एक बार लिखना 10 बार पढ़ने के बराबर है। मैं बार बार कक्षा में, कॉलेज में भी, स्कूल भी कहा करता था, एक बार लिखना 10 बार पढ़ने के बराबर है। इसलिए जितना भी हो सके लिखने का अभ्यास करें। परीक्षा की तैयारी आप करते हैं ना, तो उस समय ऐसे ही पढ़ने की जगह लिखने का अभ्यास करें। किसी प्रश्न का उत्तर एक बार लिखें या 2 बार लिखें तो अपने आप जम जाएगा। ये परीक्षा में अयो हाय मैंने जो कुछ पढ़ा वो नहीं आया, वो प्रश्न नहीं पूछा गया, इसकी ऐसा रोने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अब तो सभी का अध्ययन कर चुके हैं और लिख कर के देख चुके हैं। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि जब अध्यापक एक पाठ सिखाते हैं तो दूसरे पाठ को सिखाने के पहले ही हमें पहले पाठ का पूरा अभ्यास कर लेना चाहिए। कल एग्ज़ाम है, कल परीक्षा है। आज रात को 1 बजे 2 बजे तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे लघु परीक्षाएँ लिख करके आप अपना अभ्यास बढ़ा सकते हैं। मैं हमेशा क्लास में जो भी पोर्शन हो फटाफट जल्दी पूरा कर दूंगा। पूरा करने के बाद एक एक अंश छोटा छोटा 20 मार्क का, 10 मार्क का, 5 मार्क का रोज उनको टेस्ट रखते जाऊँगा। लोग कहेंगे, बच्चे कहेंगे ये क्या मास्टर है। जी जी, गुरुजी कहते हैं स्कूल में, गुरुजी हमें परेशान करते हैं, हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, रोज़ टेस्ट करते हैं, कौन रोज़ टेस्ट लिखेगा, ऐसा कहेंगे। लेकिन वो जब पूरा होने के बाद या परीक्षा जब आती है तो लिखने के बाद सब मेरे पास आएंगे और मेरे पाँवों पड़ेंगे, गुरुजी आपका अभ्यास जो था वो हमारे लिए बहुत आनंददायक था। क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा लिया और लिखवा भी दिया,
टेस्ट के रूप में। इसलिए आज हमें परीक्षा देने में किसी प्रकार की बेचैनी, किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। हम हंसते हंसते जल्दी हमने ख़त्म कर दिया, पूरा कर दिया, ऐसा कहते हैं। मैं कई बार सुना हूँ, इसलिए मैं भी ऐसा ही किया करता हूँ। जब ये वीडियो जब आपके लिए मैं ले रहा हूँ, उसके पहले ही मैं पुनर्अभ्यास कर लेता हूँ। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, एक बार बार इसका प्रिपरेशन जब करता हूँ ना, करते समय मैं स्वयं अभ्यास कर लेता हूँ। अभ्यास करने के बाद ही आपको पढ़ाने के लिए बैठता हूँ, वीडियो में बैठता हूँ। उसके पहले मैं वीडियो में कभी नहीं बैठता। 10 दिनों के वीडियो का वो मसाला विषय मेरे पास जमा रखता है। मैं 10 दिनों के लिए वीडियो का मसाला अपने पास आरक्षण करके रिजर्व करके रख लूँगा। उसके बाद वो तारीख डाल दूँगा, एक एक करके तारीख वाइज निकालूँगा और आपको पढ़ाऊँगा। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि आप लिखने का अभ्यास कर लीजिए। इस प्रकार गाने का अभ्यास करते हैं, उसी प्रकार लिखने का भी अभ्यास करा लीजिए। उसके बाद देखिए परीक्षाएँ आपके लिए कितनी आसान होती हैं, कितनी आसानी से आप परीक्षा दे सकते हैं। खुशी खुशी बाहर आएंगे, रोते रोते कभी भी बाहर नहीं आएंगे। पहले रोएंगे, बाद में हंसेंगे। इसलिए मैं आपसे कहा करता हूँ, लिखने का अभ्यास कर डालिए तो वही सबसे अच्छा तरीका है अच्छे अंक पाने का। मतलब बिना किसी प्रकार की झंझट के अच्छे अंक पाने का रास्ता हुई है। आशा है कि मैं इसी का पालन करता था, इसलिए मैं MA में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसका रहस्य वही है, गोल्ड मेडल का रहस्य ये है, रोज़ अभ्यास करना, लिख के देखना, हर चीज़ का लिख के देखना। अगर एक किताब हो तो किताब का पूरा पढ़ना, एक बार पढ़ लूँगा, उसके बाद उसका पार्ट करके 3 पार्ट या 4 पार्ट करके क्वेश्चन तैयार कर लूँगा, उसका आंसर लिख के रखूँगा, सिर्फ उसी को पढ़ूँगा, किताब को छोड़ दूँगा। जो भी मेरा लिखा हुआ है, पन्ने हैं, पेपर्स हैं, उस पेपर्स को ही पढ़ूँगा, किताब को मैं कभी नहीं छूता। इसलिए ऐसा प्रयास आप भी कीजिए। ये रहस्य है, यही सफलता का रहस्य है। मैं आपको सुना रहा हूँ, आप इस पर ध्यान दें और अभ्यास, लिखने का अभ्यास करते रहें, गाने का अभ्यास करते रहें, भजन का अभ्यास करते रहें, तो आप ज़रूर सफल होंगे। यही सफलता का रहस्य है। इसके साथ मैं आज का ये वीडियो पूरा करना चाहता हूँ। कल इसी प्रकार एक नए शीर्षक के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक R. सुंदरराजन, திருப்பூர். நாளை இது போன்ற ஒரு புதிய தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது அன்பன் R. சுந்தரராஜன். நீங்கள் நான் சொல்வது போலவே பயிற்சி செய்யுங்கள். ஒரு ப்ராவர்ப் உண்டு, முயற்சி எடு, முடியாவிட்டால் பயிற்சி எடு என்பார்கள். அப்துல் கலாம் சொல்வார், முயற்சி எடு, முடியாவிட்டால் பயிற்சி எடு. அதுபோல் முயற்சி எடுங்கள், தொடர்ந்து எழுதி பாருங்கள், எழுதுகின்ற பழக்கத்தை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அது உங்களுக்கு தேர்வின் பொழுது கை கொடுக்கும், வாழ்நாள் புறாவும் கை கொடுக்கும். தங்களுக்கு மறக்கவே செய்யாது. தொட்டால் போதும் கூட வந்துவிடும். அந்த ஒரு அடியை தொட்டால் போதும், உங்களுக்கு மற்ற எல்லாரும் வந்துவிடும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பழக்கத்தை நீங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு வாழ்க்கையிலே சிறந்த மனிதனாக, சிறந்த ஆசானாக, சிறந்த தலைவனாக நீங்கள் ஆக வேண்டும் என்று வேண்டி, நாளை இது போன்ற ஒரு புதிய தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்கிற வரை விடைபெறுவது தங்களின் அன்பன் R. சுந்தரராஜன், திருப்பூர். धन्यवाद, நன்றி. धन्यवाद, நன்றி. धन्यवाद, நன்றி. जय हिंद.
நாங்கள் வரதங்க